Assalamu alaikum, adab. This is me, Ajaz Jahangir Rathar, resource person, Zone Narbal District, Badgam. My dear students, let me tell you, rather, let me ask you to bring the pen and notebook so that you can note and record important points, and that what you want to what you would like to note. All right, now coming to our topic, in the earlier class I told you the various aspects of ecology. Now in earlier this classes we discussed about ecology and definition of ecology, concept of ecology, and we discussed about types of ecology. Now my dear students, in earlier classes we have discussed about ecology, right? Its concept and definition, and then its types. Now we have discussed concept, definition and types, and in types of ecology I told you there are two types. One is autoecology and the another is synecology. Then we discussed the synecology, which has been categorized further into subtypes, and those are like population ecology, like there is community ecology, and there is the biome ecology and the ecosystem ecology. Ecosystem ecology. All right. Okay. Now in today's topic we are dealing with environmental science. We are dealing with ecology, various concepts of ecology. हम माहौलियात की बात कर रहे हैं. हम माहौलियात से वाबस्ता मुख्तलिफ जो टर्म्स हैं, जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं. Now my dear students, before I announce the topic, I would like to tell you that in various religions, again, the importance of environment, importance of ecology, importance of plants has been revealed. Now like in our holy book Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, and do good as Allah has been good to you. आप अच्छा करें जैसा कि अल्लाह आपके लिए मेहरबान है, अच्छा है. And do not seek to cause corruption in the earth. Allah does not love the corruptors. Right? ये अल-कसस की एक आयत है. तो अल्लाह ताला और भी फरमाते हैं दूसरी एक सूरह आराफ में, क्या फरमाते हैं? चिल्ड्रन ऑफ एडम, ए बनी आदम, ड्रेस वेल, अच्छा पहनिए, whenever you are at worship, जब आप इबादत कर रहे हों या इबादत करनी हो. and eat and drink, और खाओ और पियो, as we have permitted, जैसा कि आपको इसकी इजाज़त है, जो खाने की आपको इजाज़त है, जो पीने की आपको इजाज़त है वो पिएं. but do not be extravagant, लेकिन फजूल खर्ची ना करें. God does not like extravagant people. फजूल खर्ची करना अल्लाह ताला को पसंद नहीं है. Now मैंने ये जो दो आयात पढ़ी, one is Allah does not love the corruptors and Allah does not love the extravagant people. Now हम एक्स्ट्रावैगेंट और फजूल खर्ची कहाँ पे करते हैं और हम करप्शन कहाँ पे करते हैं? ये इंसान का इंसान के साथ ही इंटरेक्शन नहीं है, बल्कि हम जो हमारे जानवर हैं उनके साथ भी हमारा अच्छा सलूक होना चाहिए. हम हमारे जो प्लांट्स हैं, हमारे क्रॉप्स हैं, हमारा माहौल है, हमारी मिट्टी है, सॉइल है, हमारे मिनरल्स हैं, हमारे जो कोल हैं, डिफरेंट दीज मिनरल्स आर देयर, एंड
ये सारा जो है हमें इसके साथ हमें वी हैव नॉट टू एक्सटेंसिवली दिस एग्जॉस्टेड, और इसीलिए कहा गया है कि डू नॉट बी द करप्टर्स, डू नॉट बी द एक्स्ट्रावेगेंट। इवन हमें उतना ही पानी इस्तेमाल करना है जितना हमें चाहिए। सो दिस इज़ द कमांड फ्रॉम अल्लाह सुब्हाना व तआला रिगार्डिंग दिस environment. Right, my dear students? Now coming to my topic today, where we left in the earlier class, that was ecosystem ecology. यहाँ पे हम रुके थे। तो आज हम ecosystem structure and concept पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरा जो आज का टॉपिक है that is concept and structure of ecosystem। यहां पे मैं लिखूंगा concept and structure of ecosystem। ठीक है प्यारे बच्चों, शाबाश। चलिए आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं, टीवी सेट्स के सामने बैठिए और इंशाअल्लाह हम इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्ट इस पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल राइट प्लांट्स, animals, then there are microbes, and there are insects. What all these constitute? These constitute a biome, right? ये सारे एक बायोम बनाते हैं, और इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जब ये एक कम्युनिटी में एक कहीं पे मौजूद हो तो वी कॉल दैट एज बायोटिक कम्युनिटी। वी कॉल दैट एज बायोटिक कम्युनिटी। ठीक है प्यारे बच्चों, शाबाश। नाउ ये जो ये प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, और इसके साथ साथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो हैं, शाबाश, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, उसमें हमारे मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हो सकती है। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में सॉइल है, वाटर है, लाइट है, इसी तरह टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, या और भी बहुत सारे इनऑर्गेनिक दीज कंपोनेंट्स हैं। नाउ व्हाट दे डू, दे कॉन्स्टेंटली इंटरैक्ट एंड एक्सचेंज मटेरियल। ऑल दिस, ये सारे क्या करते हैं? constantly interact and exchange material। ठीक है, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, हम उस पे बात करेंगे। फिलहाल हम यहां पे याद रखेंगे कि हमारा जो ये सिस्टम है, हमारा जो ये एनवायरनमेंट है, इसमें प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स, ये सारा कॉन्स्टिट्यूट क्या करते हैं? एक बायोम। देन एज ए कम्युनिटी इसको हम बायोटिक कम्युनिटी बोलते हैं। और इसके साथ साथ जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? ये सारे कॉन्स्टेंटली इंटरैक्ट करते हैं और एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज ऑफ व्हाट? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, राइट? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जब करते हैं तो इसमें हम जैसे किसी एक की एग्जांपल ले लेंगे, जैसे एक ट्री की एग्जांपल में ले लूंगा, ट्री, दरख्त। ठीक है, नाउ व्हाट ट्री डज, ये क्या करता है? ये बहुत सारे काम करते हैं। जैसे ये शेल्टर प्रोवाइड करता है। नाउ शेल्टर जो होम, किनको ये शेल्टर प्रोवाइड करता है? बर्ड्स को, राइट? शाबाश, चलो ये बर्ड्स को शेल्टर प्रोवाइड करता है। और ये बर्ड्स क्या करते हैं?
ये पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है, पॉलिनेशन करते हैं और क्या करते हैं, शाबाश, एंड डिसेमिनेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, एंड डिसेमिनेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स. Birds also dissemination of fruits and seeds. अब इन्होंने कोई पिक किया कोई फ्रूट कहीं से और उसकी जो गुठली है, उसका जो अंदर का सीड है, तो उसको कहीं दूर ये फेंक के आते हैं. तो हेल्प इन डिसेमिनेशन, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है. देन अच्छा, अब एज अ प्लांट ट्रीज क्या करते हैं, व्हाट प्लांट्स डज, प्लांट्स क्या करते हैं, दीज प्यूरिफाई एयर करते हैं, शाबाश, हाँ, दीज प्यूरिफाई एयर, दीज प्यूरिफाई एयर या प्यूरिफाई द एटमॉस्फेयर, एयर और एटमॉस्फेयर हम लिख सकते हैं, ठीक है. यहां तक समझ में आ गया बच्चों, शाबाश. हमने क्या अभी तक पढ़ा है, हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम. वी आर डीलिंग विद दिस इकोसिस्टम, इट्स कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर, राइट. देन उसमें हमने पढ़ा कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स, these all constitute a biome. Then as a community we call it as a biotic community, and in this biotic community there also exist non-living components. Now all these constantly interact and exchange material. ये हमेशा और constantly ये क्या करते रहते हैं, एक्सचेंज, यहां से लेते हैं वहां से देते हैं, यहां से लेते हैं वहां से देते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है, आपस में क्या, मटेरियल, बहुत सारा मवाद, वो हम पढ़ेंगे कि क्या क्या. तो उसमें हमने एक ट्री की एग्जांपल ले ली. व्हाट ट्री क्या करता है, इट प्रोवाइड्स शेल्टर टू द बर्ड्स, और भी बाकी एनिमल्स का ये शेल्टर प्रोवाइड करता है. देन व्हाट बर्ड्स डू, दे डू pollination, they help in dissemination of fruits and seeds. And plants, what plants क्या करते हैं, शाबाश, these purify air, these purify atmosphere. यहां तक आपको समझ में आया होगा. चलिए हम आगे बढ़ेंगे. यहां तक आपने नोट भी किया होगा, शाबाश. ठीक है, चलिए. तो इसके बाद नाउ अब आती है बारी एनिमल्स की. एनिमल्स जो है ना, नाउ दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं. तो ये कहां पे यूटिलाइज होता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले लेता है, शाबाश, इसको ले लेते हैं प्लांट्स. अभी मैंने बताया ना, ये जो प्लांट्स है ये प्यूरिफाई करते हैं हमारे एयर को, एटमॉस्फेयर को. दैट मीन्स जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी इस एयर और एटमॉस्फेयर में होता है, इसको ये अंदर या ले लेते हैं. तो ये एक प्रोसेस करते हैं, दैट वी कॉल एज फोटोसिंथेसिस. शाबाश, व्हाट इज दैट कॉल्ड, फोटोसिंथेसिस. थोड़ा इस फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करेंगे. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस. नाउ फोटोसिंथेसिस इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड बाय प्लांट्स. और इसमें रॉ मटेरियल क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें होता है वाटर, राइट. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दो हैं इसमें रिएक्टेंट्स, रॉ मटेरियल. और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. अब जो ये क्लोरोफिल है, ये एक ग्रीन पिगमेंट है. दिस इज एन इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, ये आप याद रखिए. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, in presence of sunlight and chlorophyll in a plant. In fact, in the leaf of a plant, जहां पे वो क्लोरोफिल कंटेंट होता है, वो आमतौर पर वहां पे होता है जहां पे वो सब्ज एरिया होता है प्लांट का, एंड दैट इज लीफ. सो दिस
helps in the manufacture of food. यहाँ पे बनता है C6H12O6 that is glucose, right? और इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी बनता है और वाटर भी बनता है. So we are concerned with the production of food. That means ये जो ये फोटोसिंथेसिस है ये प्लांट्स में होता है और प्लांट्स इस फोटोसिंथेसिस के जरिए विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल द मैन्युफैक्चर वो अपनी ग़िज़ा खुद ही बनाते हैं. ठीक है, तो ये जब ये अपनी ग़िज़ा बनाते हैं, एनिमल्स उसको कंज्यूम करते हैं, तो इन दोनों पे आ जाता है फिर इन दोनों पे. दैट मीन्स अब जो ये प्लांट्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया अंदर, एयर को प्यूरिफाई कर दिया और एनिमल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा. ठीक है, अब प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस और इसके जरिए से अपनी ग़िज़ा बनाई. तो इन दोनों को क्या करते हैं, इनको आ जाते हैं माइक्रोब्स. वो क्या करते हैं, वो इन दोनों को डिके कर देते हैं. माइक्रोब्स जो हैं ये करते हैं डिके. क्या करते हैं डिके? शाबाश, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, मुर्दा नबातात और जो ये एनिमल्स हैं इन सब को ये डिके कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं. ठीक है, अब जब ये डिके और डिकम्पोज हो गए तो उससे क्या हो जाता है? शाबाश, उससे ये हो जाता है कि जो हमारी सॉइल है उसको मिनरल्स हैं वो वापस मिल जाते हैं. क्या मिल जाते हैं? मिनरल्स. ठीक है, फिर उन मिनरल्स को कौन ले लेता है? उन मिनरल्स को फिर से प्लांट्स ले लेते हैं. ठीक है, नाउ माइक्रोब्स डिके डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, अब जब इन्होंने इनको डिके कर दिया तो ये किसके साथ मिल गए? मिट्टी के साथ. मिट्टी से इनको कौन पिक करता है? इन मिनरल्स को इनको प्लांट्स पिक कर लेते हैं. ठीक है, so we can say that all these interactions are happening between various organisms, है ना. तो जैसे कि हमने अभी ये देखा, तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं? लिविंग जो है और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो है इन नेचर टुगेदर फॉर्म ए स्टेबल सिस्टम. तो मैं इस तरह से कह सकता हूं, जो अब हमारा ये लिविंग स्टफ है, लिविंग और नॉन लिविंग, जिंदा या मुर्दा, ये कंपोनेंट्स हैं, ये एक सिस्टम है और स्टेबल है. दिस सिस्टम इज स्टेबल, राइट. तो इसी सिस्टम को, ये स्टेबल सिस्टम है, ये कैसे स्टेबल है वो हमने अभी पढ़ा. ठीक है, प्लांट्स प्रोड्यूस फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस और गेट कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स. नाउ एनिमल्स रेस्पायर एंड दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो हवा में आ जाता है. प्लांट्स हवा से वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और उसको वो साफ करते हैं, उस एयर को, एटमॉस्फेयर को. तो अब जब ये डेड हो जाते हैं ये प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो इनका क्या हो जाता है? माइक्रोब्स इन पे अटैक करते हैं. नाउ दीज डिकम्पोज द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. इनको ये सड़ाते हैं और इसको मिट्टी के साथ मिला के जो मिनरल्स हैं वो मिट्टी को प्रोवाइड करते हैं. अब ये मिनरल्स कहाँ जाते हैं? ये फिर से प्लांट्स में आ जाते हैं. इस तरह से ये एक सिस्टम चलता है. ठीक है, और इसमें कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता रहता है. और ये सिस्टम, इसी सिस्टम को हम जैसे कि स्टेबल सिस्टम कहेंगे. क्या कहेंगे? स्टेबल सिस्टम. नाउ इन दिस सिस्टम डिफरेंट कंपोनेंट्स देखिए आपने कितने कंपोनेंट्स हैं इसमें. अब इन कंपोनेंट्स को हम इस तरह कह सकते हैं, वेल ऑयल्ड पार्ट्स ऑफ अ मशीन. वेल ऑयल्ड पार्ट्स ऑफ ए मशीन जिस तरह काम करती है, वेल ऑयल्ड
पार्ट्स ऑफ अ मशीन, ये एक सिस्टम है, एक सिस्टमैटिक की तौर चलता है और एक कोऑर्डिनेट वे में चलता है। इसी तरह हमारा जो ये है इस एनवायरनमेंट में, ये भी एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है, वेल ऑयल्ड सिस्टम है, एंड दिस सिस्टम वी कॉल एज एन इकोसिस्टम। इसी को हम प्यारे बच्चों हमारा इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया व्हाट इज एन इकोसिस्टम, राइट। देन मैं फिर से दोहराऊंगा प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा, हमारे मुख्तलिफ प्लांट्स, नबातात, जमादात जिनको हम बोलते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, फिर ये क्या करते हैं, ये इंटरैक्ट करते हैं। फिर ये जब इंटरैक्ट करते हैं तो एक बायोम बनाते हैं। ठीक है, एज ए कम्युनिटी इसको हम बायोटिक कम्युनिटी बोलते हैं। शाबाश, इसको याद रखिए। देन दीज प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स, और इसके साथ द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली इंटरैक्ट करते हैं और एक्सचेंज करते हैं मटेरियल। ठीक है, नाउ इसमें हमने आपको एग्जांपल दे दी एक ट्री की। ट्री क्या करता है, ट्री provides shelter to different animals including birds. ठीक है, birds क्या करते हैं, birds help in pollination, right? Then they also help in dissemination of fruits and seeds. वो जो मेवे हैं, मुख्तलिफ मेवे हैं और उनकी जो गुठलियां हैं, सीड्स हैं, ठीक है, जिसको हम कश्मीर में ब्योल बोलते हैं, तो इस सब को वो क्या करते हैं, डिसेमिनेट करते हैं, बिखर देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ठीक है, then what happens, plants purify the atmosphere. प्लांट्स जो हैं ये हवा को साफ कर देते हैं। ठीक है, और ये हवा में जो स्टफ आता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहाँ से आता है, ये एनिमल्स से आता है। ठीक है, अब एनिमल्स रेस्पायरेशन के दौरान क्या छोड़ते हैं, शाबाश, हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। वो हवा में गया, हवा से इसको प्लांट्स पिक कर लेते हैं और इन अ प्रोसेस दैट वी कॉल एज फोटोसिंथेसिस, वी डिस्कस्ड दैट, अभी हमने वो पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस किस तरह से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, फिर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल वो ग्लूकोज बनाते हैं। इस तरह से ये प्लांट अपना ये फूड जो है वो बनाता है। लेकिन अब जब ये प्लांट मर जाता है या एनिमल मर जाता है, इसको क्या हो जाता है, ये सड़ जाता है, और इसको सड़ाता कौन है, माइक्रोब्स। नाउ दीज माइक्रोब्स एक्ट ऑन द these dead plants and animals and they decay these. क्यों करते हैं ये सब, शाबाश, वो इसलिए ताकि जो इसमें से वो डिफरेंट मिनरल्स हैं वो मिट्टी को मिले और मिट्टी से फिर वो प्लांट्स में फिर से आ जाते हैं। ठीक है, तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग जो हैं ये नेचर में टुगेदर ये एक स्टेबल सिस्टम बनाते हैं, एंड दैट स्टेबल सिस्टम वी कॉल एज इकोसिस्टम। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। नाउ ए नेचुरल यूनिट ऑफ लिविंग कम्युनिटीज, व्हाट्स एन इकोसिस्टम? नाउ इकोसिस्टम कैन बी डिफाइंड एज a natural unit of living and non-living, natural unit of living communities, okay, living communities, right? A natural unit of living communities and the non-living environment, and the non-living environment, and the non-living environment, शाबाश, ये क्या करते हैं, ये the non-living environment,
ये करते हैं इंटरैक्ट एंड एक्सचेंज, इंटरैक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटीरियल, इंटरैक्टिंग एंड exchanging material. Now ये exchange करते हैं क्या, मटीरियल को, शाबाश, between themselves is called an ecosystem, right? A natural unit of living communities and the non-living environment interacting and exchanging material between themselves is called an ecosystem. Now what is this ecosystem? Ecosystem is the basic fundamental unit of ecology, very much important. Ecosystem is the basic, बुनियादी, फंडामेंटल, बहुत ही ज़रूरी और अहम, फंडामेंटल, ecosystem is the basic fundamental unit of ecology. समझ में आया प्यारे बच्चों? शाबाश. Ecosystem is the basic fundamental unit of this ecology. Now, if we study ecosystems, अगर हमें ecosystems समझ में आ जाते हैं, मुख्तलिफ ecosystems समझ में आ जाते हैं, then we are covering the major or the majority of environmental science. अगर हम इकोसिस्टम्स को अच्छी तरह समझते हैं तो हमारा जो ये एनवायरमेंटल साइंस है, इसका जो मेजर पोर्शन है वो हम कवर कर लेते हैं, बिकॉज दिस इकोसिस्टम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस. ठीक है. अब आज के दिनों में, नाउ ए डेज, हम कहते हैं कि जो इकोलॉजिकल स्टडीज होती हैं ये की जाती है एट द लेवल ऑफ दीज इकोसिस्टम्स. मैं लिखूंगा ये, nowadays ecological studies are carried out at the level of ecosystems. And do you know what we call that, my dear students? We call that as bioenergetic approach to ecology. Bioenergetic approach to ecology. ठीक है. अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज बायोएनर्जेटिक अप्रोच टू इकोलॉजी, तो आप क्या कहेंगे? शाबाश, हम कहेंगे कि हमारी जो इकोलॉजिकल स्टडीज़ हैं, जो हमारी माहौलियात से मुतालिक जो मुतालात हैं, जो मुताला हम माहौलियात के मुतालिक करते हैं, वो अगर हम इकोसिस्टम की लेवल पे करते हैं, देन वी कॉल दैट एज बायोएनर्जेटिक अप्रोच टू ecology. Now, the term ecology, where from this term came? Ecology, ये term कहाँ से आई? शाबाश प्यारे बच्चों, याद रखिए, ये एक जो ecologist थे, his name was A.G. Tansley. इसी ने ये इकोलॉजी जो टर्म है ये दी है इन 1935 इन इंग्लैंड. राइट.
in England. Now this ecology also comprises of two terms. One is eco, this means environment, and logos, this means the study of. Now what is this ecology? Ecology, this is environment, the study of environment. And now this time we are concerned about, excuse me my dear students, I was talking about ecosystem. Now this is ecology, I have written it wrongly. We are talking about ecosystem. This ecosystem term has been given by A.G. Tansley in 1935, and that was given in England, right? Okay, now what next? Now we will try to define it the way this A.G. Tansley defined it. He defined this ecosystem as the system resulting from the interaction of all living and non-living factors of the environment. Living and non-living factors of the environment, right? I repeat, मैंने आपको यहाँ पे प्यारे बच्चों बोला कि अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ बायो एनर्जेटिक अप्रोच टू इकोलॉजी, हम उसमें ये कहेंगे कि अगर हम इकोलॉजिकल स्टडीज़ जो है माहौलियात से जो हमारे मुतालात हैं, अगर वो एट द लेवल ऑफ इकोसिस्टम्स हो, वी कॉल दैट एज बायो एनर्जेटिक अप्रोच टू इकोलॉजी, राइट? देन we talked about the term ecosystem. Who has given this term? Yes, very nice, so nice of you. This term has been given by A.G. Tansley in 1935. 1935 में इंग्लैंड में, इंग्लिस्तान में ये टर्म A.G. Tansley ने दी है. Now he defined the ecosystem as the system resulting from the interaction. You repeat with me please. आप भी मेरे साथ दोहराइए, शाबाश. The system resulting from the interaction of all living and non-living factors of the environment. Right. So this was all about the this ecosystem so far as the definition of it is concerned, and the coining of the word which has been given by A.G. Tansley. Now you remember it. Okay, very nice. Now क्या उससे पहले ये टर्म थी ही नहीं? उससे पहले क्या इस्तेमाल किया जाता था? अगर ये हमने कहा कि ये कब इसने दे दी 1935, तो उससे पहले जो इकोलॉजिस्ट्स हैं वो भी तो कोई टर्म यूज़ कर रहे होते ना. हाँ, वो क्या? तो हम कहेंगे कि इससे पहले जो इकोसिस्टम के लिए अर्लियर टर्म्स थी, अर्लियर टर्म्स ऑफ इकोसिस्टम, अर्लियर टर्म्स ऑफ इकोसिस्टम. शाबाश. तो प्यारे बच्चों याद रखिए, उसमें है बायोकोनोसिस, बायो COENOSIS, बायोकोनोसिस. ये एक टर्म दी गई थी जिसके इकोसिस्टम के बदले. ये इससे पहले इन वोग थी, ये चलती थी. तो एक और है जियो बायोकोनोसिस, जियो बायोकोनोसिस. ठीक है, हो गई दो. एक और थी बायोजियोकोनोसिस, बायोजियोकोनोसिस. ठीक है, ये भी एक और टर्म थी. और इसी के साथ एक और थी दैट वी कॉल एज माइक्रोकॉस्म, माइक्रोकॉस्म.
इकोकॉस्म। इसी तरह एक और है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज बायोसिस्टम। बायोसिस्टम। And then there is one more, that is ecocosm. I repeat my dear students, मैं फिर से दोहराऊंगा, मैं आपसे कह रहा हूं कि जो इकोसिस्टम टर्म है, वर्ड है, दैट वाज गिवन बाय A.G. Tinsley in 1935. नाउ उससे पहले जो टर्म्स इकोसिस्टम के बदले इस्तेमाल होती थी, इस्तेमाल में थी, तो उनमें बायोकोनोसिस है, जियोबायोकोनोसिस है, बायोजियोकोनोसिस है, माइक्रो कॉस्म है, बायोसिस्टम है, एंड देन देयर इज लास्टली दिस इकोकॉस्म एक्स्ट्रा। लेकिन जो ये टर्म इकोसिस्टम है, दिस इज मोस्टली यूज्ड, मोस्टली प्रेफर्ड। नाउ जो ये टर्म है, this is mostly used, otherwise these terms are synonymous to this ecosystem. Now this is mostly used and preferred, right? Okay my dear students, so now what does the eco mean? Now eco means environment, हमारा जो माहौल है, our surroundings। जो अर्नेस्ट हैकल है, उसने जो दिया था, that was this our surroundings, and that we call as environment today, right? So we can say this ecosystem has been it is a combination of two words, one is eco and another is system, right? Now this eco means environment, and what does the system mean? System means an interacting, interdependent complex. Interacting, interdependent complex। इंटरैक्टिंग, जिनका आपस में इंटरैक्शन हो, इंटरडिपेंडेंट, जो एक दूसरे पर मुनहसिर हो, इसी का एक complex, we call that as system. Now eco means environment. Now the literal meaning of this is interacting, interdependent complex of environment is ecosystem, right my dear students? Okay, now how big could be this ecosystem? Is it small? Is it very small? Is it large? Or is it very large? Let's try to know. उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? Okay. So my dear students, you should know and you will remember it that this ecosystem, it's not fixed. The size of ecosystem is not fixed. It's not fixed. Size not fixed. So this ecosystem could be it could be very small. Now it can be small. Now it can be large. और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, it can be very large. ठीक है, रखा याद? जो हमारा इकोसिस्टम है, ये इसका जो साइज है, दैट्स नॉट फिक्स्ड, और देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट बाउंड्री. नाउ वी कैन से इट कैन बी वेरी स्मॉल. ये बहुत छोटा हो सकता है, ये इकोसिस्टम. इट कैन बी स्मॉल, ये छोटा हो सकता है. इट कैन बी लार्ज, ये बड़ा सिस्टम हो सकता है. इट कैन बी वेरी लार्ज, ये बहुत ही बड़ा सिस्टम हो सकता है. नाउ हाउ स्मॉल इट कैन बी? इट कैन बी as small as a single fallen leaf. Single fallen leaf.
सुना बच्चों, इकोसिस्टम कैन बी एज स्मॉल, ये इतना छोटा हो सकता है जितना अगर एक पत्ता एक प्लांट से, एक पौधे से, एक दरख्त से, एक ट्री से गिरा हो, तो वो जो नीचे गिरा है मिट्टी पे पड़ा है, दैट इज इन इटसेल्फ एन इकोसिस्टम। ठीक है, नाउ isn't that very small? Yes. So it can be as small as a single leaf. It can be as small as a lump of soil. It can be a lump of soil. मिर्च प्राल इसको कश्मीरी में बोलते हैं, आख मोठ, इतना छोटा भी हो सकता है, lump of soil. Now it can be as small as water in a ditch. Water in a ditch. खाई, जो एक खाई होती है ना सड़क के किनारे, वो जो एक खाई जैसी होती है, नाउ उसमें जो वाटर है वो भी एक इकोसिस्टम है, दैट इज इन इटसेल्फ एन इकोसिस्टम. नाउ इट कैन बी एज लार्ज एज, ये तो हो गई स्मॉल की बात. नाउ इट कैन बी एज लार्ज एज ए ग्रास लैंड. नाउ इट कैन बी एज लार्ज एज अ ग्रास लैंड. ग्रास land. It can be as large as a river. Got it, my dear students? It can be as large as a desert. It can be as large as a sea. It can be as large as an ocean. You got it, my dear students? I'm talking about the size of the ecosystem. I told you there is no fixed size of the ecosystem. It can be very small, it can be small, it can be large, it can be very large. ठीक है, तो उसमें मैंने बोला कि आपको कि एक सिंगल फॉलन लीफ इट कंप्राइजेज एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम है. लप ऑफ सॉइल, ये एक इकोसिस्टम है. वाटर इन ए डिच, एक खाई में पड़ा पानी, एक इकोसिस्टम है. नाउ इट कैन बी लार्ज एज अ ग्रास लैंड. इट कैन बी एज लार्ज एज अ रिवर. इट कैन बी एज लार्ज एज अ डेजर्ट. इट कैन बी एज लार्ज एज अ सी एंड ocean. You got it? Okay, now let's talk about a small roadside ditch is an ecosystem. How is a ditch an ecosystem? Let us try to understand that. उसी को समझेंगे, ठीक है? Now I am taking the ecosystem as a roadside ditch, a small roadside ditch, a small roadside ditch. Now it's an ecosystem. ये हमारा एक ecosystem बनाता है. Now how is this an ecosystem? You know, my dear students, if you don't know it, that there are some bacteria. There are some bacteria. Now these bacteria can be photosynthetic bacteria, we call as the cyanobacteria. Okay, या इसमें हो सकता है blue green algae. ठीक है, some bacteria, blue green algae और green algae. किस में हो सकती है ये? इस डिच में, इस खाई में. ठीक है, जो एक रोड साइड के नजदीक में होती है. नाउ दिस वाटर इन इट हैज अ सर्टेन टेम्परेचर. इसका अपना एक टेम्परेचर हो सकता है ना, सर्टेन टेम्परेचर. यू गॉट इट, माय डियर स्टूडेंट्स? नाउ इट हैज गॉट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड इट हैज गॉट अ सर्टेन pH, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स. ठीक है, नाउ दैट इज pH. अब ये pH भी हो सकता है इसमें. तो इसमें क्या हो सकता है? मिनरल्स फ्रॉम द अंडरनीथ सॉइल. मिनरल्स फ्रॉम द अंडरनीथ सॉइल. अरे बच्चों, याद रखना चाहिए, जो हमारी मिट्टी है ना, ये बनती है पत्थरों से, चट्टानों से. अब वो एक अलग सा प्रोसीजर है उसका, दैट्स कॉल्ड रॉक साइकिल. अब उसमें होते हैं मिनरल्स. ठीक है,
तो ये मिनरल्स जो है इस खाई में है, इसके नीचे जो मिट्टी है, तो उससे जो मिनरल्स उस मिट्टी में मौजूद हैं वो इसमें हो सकते हैं ना, तो ये भी तो उसमें हो सकते हैं। शाबाश। और इसमें और क्या हो सकता है? इट ऑल्सो गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट, गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट, गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट। ठीक है, it gets influenced by light now, and it gets influenced by atmospheric humidity, atmospheric humidity, it gets influenced by atmospheric humidity, and then it has certain organic and inorganic compounds. Now it has certain organic and inorganic compounds, it has certain organic and inorganic compounds, वो भी इसमें हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं? शाबाश। वो हो सकते हैं formed by the decomposition of the living organisms, formed by the decomposition formed by the decomposition of living organisms, formed by the decomposition of the living organisms. Then ये जो सारा है, this constitutes a complete ecosystem. Now my dear students, हम बात कर रहे हैं a small roadside ditch, एक खाई है एक रोड साइड के साइड में। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं? उसमें पानी है, उसमें बैक्टीरिया है ना, उसमें ब्लू ग्रीन अलगी है, उसमें ग्रीन अलगी है, इसमें उसका अपना एक सर्टेन टेम्परेचर है, अपना एक सर्टेन पीएच लेवल है, और देन इसमें जो मिट्टी है नीचे, उससे उसको मिनरल्स मिलते हैं अंडरनेथ द सॉइल, इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट, दिस बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, ग्रीन अलगी, नाउ दीज take light, and the ditch, this ecosystem, it gets influenced by the light. Now it gets influenced by the atmospheric humidity. It contains organic and inorganic compounds formed by the decomposition of living organisms. So in this way we can say the exchange of materials is taking place. Now the non-living components of the environment, this light, moisture, temperature, pH, all these are involved in this. Now all this and these living organisms like blue green algae, green algae, and bacteria, these are present in this. Now this constitutes an ecosystem. प्यारे बच्चों, आपको समझ आया कि एक इकोसिस्टम कैसे बनता है? ये इस तरह बनता है जो अभी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये याद रखा। नाउ हम बात करेंगे a tree is an ecosystem. वो अब ट्री हम समझेंगे कि एक इकोसिस्टम कैसे है। ठीक है, मैं लिखूंगा a tree is an ecosystem. अगर अपने जहनों पे आप दबाव डालेंगे, थोड़ा सा ज़रा सा दबाव डालेंगे आप अपने जहनों पे, तो आपको याद आएगा कि जब मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया तो मैंने आपको पहले क्या बोला। ठीक है, अभी मैं जो दोहराऊंगा आपको इंशाल्लाह याद आ जाएगा। ठीक है, मैं लिखूंगा a tree is an ecosystem. Now a tree, now I will discuss the tree as an ecosystem. Now what is there in a tree? Now tree क्या बनाता है? शाबाश, फूड बनाता है by शाबाश, very nice, photosynthesis. Right. Now a tree produces food, forms food, manufactures food with the help of a process called photosynthesis. Now it provides shelter to birds. Right. Now you remember it, shelter to birds. Right. Okay, now what does a tree do then? It provides shelter to another animals. Now in the animals there could be monkeys. Yes, there could be monkeys, there could be rabbits, there could be rabbits. ठीक है, in fact there could be bacteria inside birds, bacteria inside birds.
inside birds. Right, my dear students? Now there could be bugs, ticks, fleas. Bugs, ticks and fleas. My dear students, there could be parasitic fungi. Parasitic fungi. Parasitic fungi. It is a parasite. It takes the advantage of the host, takes the nutrition from the plant. You know it, okay. Then this is this parasitic fungi. Then there is bacteria. Now there are bacteria. Now what else does this tree do? और क्या करता है ये ट्री? शाबाश, it provides shelter to underneath plants. Now वो भी तो है ना जो ये प्रोवाइड करता है शेल्टर. किनको? जो इसके नीचे जो प्लांट्स होते हैं उनको ये शेल्टर प्रोवाइड करता है. अंडर इट, टू द प्लांट्स अंडर इट. शाबाश, टू द प्लांट्स अंडर इट, टू द प्लांट्स अंडर इट. राइट, शाबाश, टू द प्लांट्स अंडर इट. नाउ उससे क्या हो जाता है? शाबाश, उससे ये हो जाता है कि it reduces light intensity and heat. It reduces light intensity and heat intensity किनको? अंडरनीथ जो इसके प्लांट्स है उन पे जो पड़ने वाली लाइट होती है, लाइट इंटेंसिटी और हीट इंटेंसिटी, उसको कम करती है, रिड्यूस करती है. देन बट इट इंक्रीजेस द मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी. बट इंक्रीजेस द मॉइस्चर, या हम ह्यूमिडिटी भी बोल सकते हैं. तो प्यारे बच्चों, आप अगर जहन में आपको आया होगा, जो एक बड़ा प्लांट होता है उसके नीचे जो मिट्टी होती है उसमें वो एक वो मार्शी जैसा होता है, डैम्प जैसा होता है. क्यों? क्योंकि उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है और उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, ह्यूमस ज़्यादा होता है. ठीक है, तो ये क्या करता है? जो अंडरनीथ प्लांट्स है उनको ये बचाता है हीट इंटेंसिटी से. और देन और भी क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड्स. प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड्स. स्ट्रॉन्ग विंड्स, उनसे उनको बचाता है. और इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग लाइट, विंड्स, लाइट. इन फैक्ट इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम दिस रेन, फोर्सफुल रेन. कभी रेन ड्रॉप्स जो होते हैं ना वो बहुत तेज होते हैं, अगर वो डायरेक्टली उन प्लांट्स पे पड़ेंगे ना तो उनको नुकसान पहुंच सकता है. लेकिन ये बड़ा प्लांट जो होता है, ये ट्री होता है, ये क्या करता है? ये पहले अपने ऊपर ले लेता है उस रेन को. फिर उससे क्या होता है कि उससे फिर वो उसका जो असर है, उसकी जो इंटेंसिटी है रेन की, वो कम हो जाती है और वो इस जो ये अंडरनीथ इसके प्लांट्स होते हैं इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते. तो हम लिखेंगे रेन ड्रॉप्स नॉट फोर्सफुल टू दीज. रेन ड्रॉप्स नॉट फोर्सफुल. ठीक है, नॉट फोर्सफुल. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट a tree. Now you see how many functions a tree is doing, right? Then एक और ये है कि जो हमारा ये ट्री होता है, नाउ मैंने अभी पहले बोला इसके अंडर जो सॉइल होती है इट इज मोर ह्यूमस. इसकी जो सॉइल होती है ना इसके अंडर, वो मोर ह्यूमस होती है. वो इतनी ह्यूमस क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि जो इसके लीव्स हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं उधर ही, बिकॉज ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स. बिकॉज ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स, जो इसके लीव्स हैं वो इसके नीचे गिर जाते हैं इस मिट्टी पर, तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं. उससे क्या हो जाता है? लेस इवोपरेशन फ्रॉम द सॉइल. उससे हो जाता है लेस इवोपरेशन फ्रॉम
the soil. ठीक है, less evaporation from the soil. Now in this way we can say this a tree is also a complete ecosystem. Now और क्या हो सकता है, और many insects and worms. Now you see my dear students, हम एक ट्री की बात कर रहे हैं और हम कहीं उस वो बोलते हैं ना पाए तकमील को पहुंचते ही नहीं है. क्यों? अब देखिए इतना सिस्टम, अल्लाह ताला की कारीगरी देखिए आप, ये इतना सिस्टम, ए ट्री, इट्स अ कंप्लीट इकोसिस्टम. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ कंप्लीट इकोसिस्टम. नाउ देयर आर वेरियस प्रोसेस अगेन गोइंग अंडर दिस, लाइक देयर इज नाइट्रिफिकेशन, देयर इज डिनाइट्रिफिकेशन, देयर इज अमोनिफिकेशन, देयर इज नाइट्रोजन फिक्सेशन by the nitrogen fixing bacteria we call as cyanobacteria and many other these bacteria. Now all these processes, actions, reactions, interactions around a single tree, this is one complete ecosystem. This is one complete ecosystem, my dear students. Let me remind you that Sheikhul Alam Rahmatullah Alayhi has said, "Anposh teli yele van posh." Do you know why he said this? Because he was the saint. He knew the things. He was an ecologist. Now you can just yourself decide if man cuts a tree. अगर एक कोई आदमी बंदा एक ट्री को काटता है, दरख्त को काटता है, he cuts a complete ecosystem. Now we won't let that happen extensively. This was all about this. Inshallah we will continue this in next lecture. Till then I would like to ask convey you my email address, that is aijazjanger123@gmail.com. my name is Ijaz Jahangir Akhtar. I am a resource person in Zone Narwal district Badgam. You can contact me anytime, anywhere. I'll be available inshallah. Till then, stay safe, stay blessed. Thank you.